ने कल देखा था क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड्स। तो व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. Generally, crystalline solids have flat surfaces which meet at angles that are characteristics of the substance. ठीक है? The arrangement of the constituent particles, that is atoms, molecules or ions in a crystal is ordered and repetitive. मतलब एक ordered pattern में रहेगा ये, ठीक है? A के बाद B, B के बाद A के बाद B, ऐसा रहेगा. ऐसा नहीं कि A, B, फिर B, B, A, ऐसा नहीं रहेगा. So बहुत long range order होता है इनका. This is called as long range order. Disciplined तरीके से. Okay, this is long range order. Crystalline solids have a long range order. It means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. ठीक है, ये भाई साहब अपने आप को रिपीट करता रहेगा periodically over the entire crystal. They are produced by slow cooling of liquid under controlled conditions. तो slowly हम किसी liquid को cool करके controlled conditions में crystalline solid. जैसे आप देखोगे शक्कर कैसे बनाए, आपके शक्कर के जूस से शक्कर बना है, तो यहाँ पे स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड से आपका शक्कर बना है. ठीक है, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड अंडर कंट्रोल कंडीशंस. दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. ये अपन पढ़ेंगे. ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म आर समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, आइसोमॉर्फिज्म क्या है? देखो, द टर्म मॉर्फिज्म इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिबिट आइसोमॉर्फिज्म. तो जैसे अगर आप देखोगे सेम इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, रॉक सॉल्ट देख लो, सोडियम क्लोराइड, गैलेना दैट इज पीबीएस, लेड सल्फाइड आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस बट बोथ ऑफ देम हैव द सेम स्ट्रक्चर. हेंस सोडियम क्लोराइड एंड गैलेना दैट इज लेड सल्फाइड आर नोन टू शो आइसोमॉर्फिज्म. सेम स्ट्रक्चर है इनका भाई साहब. ठीक है, ओके. Polymorphism, when the same substance exists in different crystalline structures in different conditions, it is known to exhibit polymorphism. जैसे carbon exhibits polymorphism. Carbon can exist in two different crystalline structures, namely diamond and graphite. ये दो crystalline structures में exist कर सकता है. In diamond, sp cube hybridized orbitals in each carbon atom are linked to the sp cube hybridized orbitals of four other carbon atoms, forming a tetrahedral lattice structure. The structure extends in space and produces a rigid three-dimensional network of carbon atoms with directional covalent bonds throughout the lattice. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो गया पॉलीमॉर्फिज्म. ग्राफाइट का देख लो भाई साहब, ये डायमंड है. देखो डायमंड में देखो इस तरह से भाई साहब एक कार्बन एटम चार से बंधा हुआ है, ये कार्बन एटम है चार से बंधा हुआ है, ये एक कार्बन एटम है चार से बंधा हुआ है. सो ग्राफाइट एज अ लेयर. और यहाँ पे कैसा है? लेयर. यहाँ पे भी वैसा ही है लेकिन लेयर, कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे भी है लेकिन लेयर्स में है. ठीक है, so graphite has a layered structure held by the van der Waals forces. Each layer of graphite is composed of planar hexagonal rings of sp square hybridized. यहाँ पे भाई साहब क्या है? आपका sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, दोनों ही कार्बन से बने हैं, प्योर फॉर्मेट्स ऑफ कार्बन है. यहाँ पे भाई साहब और कुछ नहीं है. दीज आर बेसिकली प्योर फॉर्मेट्स ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? ग्राफाइट एज अ लेयर स्ट्रक्चर हेल्ड बाय van der Waals forces. Each layer of graphite is composed of planar hexagonal rings of sp square hybridized carbon atoms. तो देखो ये sp square hybridized carbon atoms हैं. ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्राफाइट. Each carbon atom is hexagonal ring means 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms and the fourth electron forms a pi bond. ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं. एनिसोट्रॉपिक क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. Anisotropy is a property of crystalline solids by which the magnitude of physical properties such as refractive index, thermal conductivity, etc. shows a variation in the direction in which it is measured. That is, crystalline solids show different properties in different directions. तो आपका देखो इस तरीके का समझ लो कोई सॉलिड है. ठीक है, ये आपका लेट से एक सॉलिड है. ठीक है, ओके. अभी आप में यहाँ पे दो चीजों से ये सॉलिड बना हुआ है. ठीक है, लेट्स से बाद ये बाद ये बाद भाई साहब ये ऐसे जाएगा भाई साहब, है ना? क्लियर है? एक व्हाइट एक येलो. ठीक है, ओके. अब समझ लो आप लाइट को इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके. और लाइट को आप इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, क्या दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पे लाइट जो है, समझ लो ये दोनों भी ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं.
लेकिन इनकी डेंसिटी अलग अलग है। तो भाई साहब क्या होगा, ये एक सॉलिड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सॉलिड। यहाँ पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो जब लाइट को आप इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, एक बार ये व्हाइट को एनकाउंटर कर रहा है, दूसरी बार येलो, व्हाइट येलो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब लाइट को आप इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, सबके सब येलो मिल रहे हैं आपको, ठीक है। लाइट को समझ लीजिए आपने इस डायरेक्शन में डाला तो सबके सब आपको व्हाइट मिल गए। तो मतलब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, क्या वो डिफरेंट होगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इनका एवरेज होगा, यहाँ पे भाई साहब इनका एवरेज होगा और यहाँ पे भाई साहब इनका एवरेज होगा। और तीनों कंडीशंस में जो सॉलिड्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनिसोट्रॉपिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय अनिसोट्रॉपिक? अनिसोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, show a variation in the direction in which the crystalline solids show different properties in different directions। तो ये होगा ही होगा, ठीक है। एमरफस सॉलिड्स ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये भीड़ है, कुछ भी कहीं पे आ सकता है, समझ में आ रहा है? आप भाई साहब एक बहुत भीड़ वाले इलाके से बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, तो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, चाहे कोई बुढ़ी आ जाए सामने, चाहे कोई भाई साहब छोटा सा बच्चा आ जाए सामने, चाहे कोई मिडिल एज मैन आ जाए सामने, तो आप यू आर रेडी फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आपको ब्रेक लगाते हुए ही चलना पड़ेगा, कोई भी कुछ भी सामने से आ सकता है। नेट नेट क्या है कि आप जब उस मार्केट से निकले तो इससे ज्यादा स्पीड आपकी नहीं होगी, चाहे सामने कोई भी आए। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे आपका कुछ मैटर नहीं करता सामने क्या आएगा, तो इसका मतलब आपका इधर एनिसोट्रॉपी नहीं होगी, ठीक है। एमरफस सॉलिड्स में एनिसोट्रॉपी नहीं होगी, ये खिचड़ी है भाई साहब, इट्स अ खिचड़ी, ठीक है। तो आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसी डायरेक्शन में तो आपको हर जगह प्रॉपर्टी सेम ही मिलेगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ लेट्स से थर्मल कंडक्टिविटी और द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी डायरेक्शन आर गोइंग टू रिमेन द सेम। ये एक मार्केट एरिया है भाई साहब, आप बाइक चलाते हुए इधर से जाएं, इधर से जाएं, ऐसे जाएं, वैसे जाएं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि आपको सेम टाइम लगने वाला है, ठीक है। आपको सेम टाइम लगने वाला है, सामने कौन आएगा इसका कुछ भरोसा नहीं। यहाँ पे सामने कौन आएगा इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, ठीक है। बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, सो एनिसोट्रॉपी बेसिकली क्या है? क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। व्हेन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस वी कॉल इट एज एनिसोट्रॉपी, ठीक है। An illustration of anisotropy in crystalline solids is given when we analyze a physical property, say refractive index along AB। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, ए बी में ये एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है भाई साहब, ठीक है। तो आप जैसा अब ये ए बी में जा रहे हो तो सब आपको ग्रीन मिल रहा है कि नहीं? अब भाई साहब समझ लो एफ ई में जा रहे हो तो एक बार येलो, एक बार ग्रीन, एक बार येलो, एक बार ग्रीन, ऐसा मिल रहा है। समझ लो आप सी डी में जा रहे हो, लाइन रे ऑफ लाइट को लेकर जा रहे हो, सारे के सारे आप क्या मिल रहे हैं? येलो मिल रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन में आप अलग अलग अरेंजमेंट को एनकाउंटर कर रहे हो और ये एनकाउंटर जो आप कर रहे हो इसके हिसाब से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। इसी को हम बोलते हैं क्या? अनिसोट्रॉपी। अभी भाई साहब अमरफस सॉलिड्स में कौन सामने आएगा कुछ मालूम नहीं, एक खिचड़ी है भाई साहब। यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी। सो एनिसोट्रॉपी इज डेफिनेटली नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अमरफस सॉलिड्स, however anisotropy is a property of crystalline solids, ठीक है। are we clear on this? The word amorphous means without form, ठीक है। solids that do not have a definite geometry shape are known as amorphous। example rubber, wax, plastic, sulfur etc। an illustration, ये आपका amorphous solid है भाई साहब, स्पाइडर वेब की तरह। तो एक बड़े मार्केट में जो अफला तफली वाला माहौल है वैसा है, ऑर्डर अरेंजमेंट है नहीं। तो आपका भाई साहब कहीं से भी लाइट को डालो वही प्रॉपर्टी आएगी, इधर से जाओ उधर से जाओ, इधर से जाओ उधर से जाओ, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमरफस सॉलिड, दे आर फाउंड बाय द सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। सडन कूलिंग अगर किसी लिक्विड की करोगे तो अमरफस सॉलिड मिल जाता है। पेपर वेट, देखो आपने देखा रहेगा ऐसा पेपर वेट है, उसके अंदर ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। ये डिजाइन कैसे बने हुए? सडन कूलिंग किया है आपने ग्लास का, ठीक है। ग्लास के सडन कूलिंग से ये पेपर वेट बना है, इसके लिए अंदर ही अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। दे आर फॉर्म समटाइम्स दे आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स, मतलब फॉल्स के सॉलिड्स हैं ये। ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। अभी जैसे आप देखोगे ग्लास है ना, देखो ये ग्लास है, ठीक है। आपका कोई समझ लो ग्लास पेन है, ठीक है।
आपको लग रहा है ये सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली ये सुपर कूल्ड सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है या सूडो सॉलिड है। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सालों बाद आपके विंडोज जाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लगेगा ये, ठीक है, यही ग्लास जो है तो नीचे सेटल डाउन होने लगेगा, इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। इसलिए आप देखोगे जो लोग एल्यूमिनियम वगैरह का काम करते हैं उन लोग थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग जो गैप रहता है थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे उसमें, क्योंकि ये धीरे धीरे ये नीचे जमा होगा, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ग्लास panes fixed to windows or doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लास का मटेरियल है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बहुत सालों बाद आएगा, खैर, ठीक है। दिस इज बिकॉज द ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड मेक्स द बॉटम स्लाइटली थिकर, ठीक है। पेपर वेट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। amorphous solids are isotropic in nature, ठीक है, इनका भाई साहब आइसोट्रोपिक नेचर है। आइसोट्रोपिक मतलब सेम प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, दीज आर नॉट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। नो मैटर इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग इनसाइड एन amorphous solid, द प्रॉपर्टीज आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो आपके प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, non-directional in nature. Physical properties are non-directional in nature. In isotropic solids, physical properties are directional in nature. Are we clear on this one, people? और इसका रीजन क्या है समझ में आ रहा है? आइसोट्रोपिक सॉरी अपना एमरफस सॉलिड्स में अफला तफली है, भीड़ है भाई साहब, किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको उतना ही ट्रैफिक मिलने वाला है, ठीक है। ओके, आइसोट्रोपी, तो यहाँ पे देखो किसी भी डायरेक्शन में जाओ भाई साहब, बी से ए में जाओ, एफ से ई में जाओ, डी से सी में जाओ, सब भीड़ ही भीड़ है, ठीक है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स बाय व्हिच द सब्सटेंसेस एग्जिबिट द सेम वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। So no matter in which direction you are trying to move within a solid, the properties are going to remain the same. Properties like thermal conductivity, refractive index, all these. Amorphous solids are isotropic in nature because there is no long range order in them and the arrangement is irregular along the directions. So arrangement by sab irregular hai, theek hai? Hence a physical property measured along any direction will average out to give approximately the same value. तो एवरेज भाई साहब सेम ही आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टीज, शेप, इट हैज अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप, इट हैज एन इरेगुलर शेप। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप होगा, एमरफस सॉलिड का बच्चा पार्टी इरेगुलर शेप होगा। नेचर ऑफ सॉलिड्स, एक ट्रू सॉलिड है भाई साहब, ठीक है, मतलब वो आज की तारीख में जैसे समझ लो अगर आपने आयरन लिया है तो आयरन भाई साहब ये समझ लो कोई आयरन का पीस है, आज से 10 साल भी बाद भी ये यही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ग्लास का पीस लिया है तो 10 साल बाद थोड़ा सा नीचे वाला मोटा हो जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्योर सॉलिड नहीं है, इट्स अ स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो इट्स अ स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड एमरफस सॉलिड्स, ठीक है, क्लियर है? इसको लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ये, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन डन, ओके। प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे भाई साहब आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मिलिट्री डिसिप्लिन है भाई साहब, बहुत दूर तक, चाहे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो चाहे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको बड़ा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलेगा। बड़े इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, ऐसा है, ठीक है। इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट्स, ठीक है।
It can be cut along specific crystal planes and the newly generated surfaces are plain and smooth. तो एक specific plane में आप इसको cut कर सकते हो, ठीक है? It can be cut along random directions and irregular shapes, no sharp edges, ठीक है? तो जैसे अगर आप देखो किसी सॉलिड को, जैसे ये आपका भाई साहब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अगर आप कट कर रहे हो तो एकदम स्पेसिफिक उसमें कट करना पड़ेगा। किसी कोयले को अगर आप तोड़ रहे हो तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा भाई साहब, है ना? तो ये अमरफस इट कैन बी कट एट रैंडम डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में आप कट कर सकते हो उसको, ठीक है? ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज अ फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो शार्प होगा। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि आयरन का 1538 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट, तो कोई भी आयरन का सैंपल लो, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, वो सब का सब पूरा का पूरा 1538 पे पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोयला लेता हूं जो अमरफस सॉलिड है, तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होगा, लेट्स से 100 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा रेंज होगा। मतलब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे तो मेल्टिंग चालू हुई, लेकिन जो भी सैंपल आपने लिया है वो पूरा पूरा मेल्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ है, बाकी का बाकी है। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ द शॉर्ट रेंज, इट हैज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स फॉर मेल्टिंग, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ये कभी भी नहीं होगा। मतलब जैसे मैं बोलूं आयरन का फिक्स्ड है, 1538 इज फिक्स्ड फॉर प्योर आयरन, इट विल मेल्ट एट दिस इररेस्पेक्टिव ऑफ मास साइज एनीथिंग। यहां पे भाई साहब आपका रेंज में मेल्ट होगा, मतलब 100 से चालू होगा और कहीं जाकर 105 में खत्म होगा, ऐसा होगा, ठीक है? इट विल नॉट बी हैविंग अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब जमघट है, ठीक है? In the graphical representation of melting point of crystalline solid, it can be observed that the solid-liquid equilibrium exists at a definite temperature. That is, melting point happens at a fixed temperature. In the graphical representation of melting point of amorphous solid, it can be observed that solid-liquid equilibrium exists at a range of temperature. तो अगर आप देखो यहाँ पे ग्राफिकल देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका क्या है भाई साहब? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ध्यान से देखो, ये आपका भाई साहब टाइम T1 to 2 है, ये सॉलिड है भाई साहब, ठीक है? ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये भाई साहब आपका लिक्विड हो गया। ये वाला क्या है आपका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद करो क्या होता है? तो आपको पूरा टेम्परेचर मतलब पूरा हीट देना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा सैंपल मेल्ट होगा एक साथ, ठीक है? ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। यहां पे देखो भाई साहब, मेल्टिंग ऑफ एमरफस सॉलिड, ये सॉलिड है, आपने इसको हीट दिया और ये ट्रांजिशन फेज में, मतलब कैसा है देखो, यहां पे कैसा है आपका पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट होगा, यहां पे थोड़ा मेल्ट हुआ, यहां पे थोड़ा सॉलिड मेल्ट हुआ, यहां पे थोड़ा सॉलिड मेल्ट हुआ, ऐसे जा रही है। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। यहां पे आपका टेम्परेचर राइज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई साहब? बिकॉज द एंटायर अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द टेम्परेचर, ठीक है? इसको देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, it can be observed that the solid liquid equilibrium exists at a definite temperature T। तो आप देखोगे भाई साहब डेफिनेट टेम्परेचर T पे, इस टेम्परेचर T पे सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, सारा का सारा हीट किस में जा रहा है? टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड गेट देम कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर में। Graphical representation, it can be observed that solid liquid equilibrium exists at a range of temperature। तो ये आपका भाई साहब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में है, कहां से कहां तक? ये T2 से लेकर T1 तक, ठीक है? तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड, ऐसा चलता रहेगा। सो फॉर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर द मेल्टिंग हैपेंस। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मेल्टिंग हो जाएगा, एक ही टेम्परेचर में पूरा का पूरा सॉलिड, चाहे 10-15 ग्राम का सॉलिड हो या 1000 क्विंटल का सॉलिड हो, एक टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। यहाँ पे भाई साहब इट विल मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम T2 to T1, ठीक है? इट विल मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो amorphous solids will not have a sharp melting point, crystalline solids will have a sharp melting point, ठीक है? क्लियर है? ये एक बड़ा डिफरेंस है, इसको लिख लीजिए। इट हैज अ फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर विच फॉर मेल्टिंग, इट डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। रेंज ऑफ टेम्परेचर है भाई साहब इसका।
डन डन ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया मेल्टिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग ऑफ एमरफस सॉलिड देखिए एनिसोट्रॉपिक क्या है इट हैज एन एनिसोट्रॉपिक नेचर इट हैज एन आइसोट्रॉपिक नेचर एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी आपके डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज चेंज होंगी depending on the direction in which you are moving inside a solid the properties like refractive index melting point etc are going to change now in this case the direction is not going to change ठीक है सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आपका सिल्वर आयरन कॉपर सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट निकल सल्फेट वाटर डायमंड ग्रेफाइट क्वार्ट्ज सक्रोज शुगर ये सब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए अमरफस सॉलिड्स कोल कोक ग्लास प्लास्टिक एमरफस सिलिका रबर स्टार्च ये सब आपके एमरफस सॉलिड्स हो गए ठीक है ओके 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 बेस्ड ऑन द फोर्सेस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो सॉलिड्स में आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब आयनिक सॉलिड्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स होते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं मेटालिक सॉलिड्स होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं बेस्ड ऑन द फोर्सेस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसको लिख लीजिए सॉलिड्स हैव फोर डिविजन्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ionic solids, covalent solids, metallic solids, and molecular solids. Okay. Now, what is an ionic solid? As the name itself suggests, between the two cations and anions, you will have ionic bonds. Ions are the constituent particles of ionic solids. तो जैसे आपका NaCl हो गया एक ionic solid, MgCl2 हो गया भाई साहब एक ionic solid, KCl हो गया एक ionic solid, KNO3 हो गया एक ionic solid, and these are held together by electrostatic forces of attraction. तो obviously इनके बीच में जो bond होगा वो ionic bond होगा एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है एक ने इलेक्ट्रॉन लिया है डोनर और एक्सेप्टर एंड हेंस देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बिटवीन देम ठीक है ओके दे आर फाउंड बाय थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस तो देखो यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट रहेगा क्यूबिक अरेंजमेंट ये कटायन ये अनायन कटायन ये अनायन कटायन का साइज बड़ा होता है सॉरी कटायन का साइज छोटा होता है अनायन का साइज बड़ा होता है जैसे समझो सोडियम के सोडियम और क्लोरीन एक ही पीरियड में आते हैं ठीक है तो दोनों के नंबर ऑफ शेल्स वुड बी द सेम but once sodium has lost its one electron in the third shell it becomes a two shelled atom and chlorine has gained an electron in the third shell so it is a three shell atom तो इसके भाई साहब तीन शेल्स है तो इसका साइज बड़ा होगा इसके भाई साहब दो ही शेल्स है तो इसका साइज छोटा होगा तो जनरली आपके कैटायंस जो हैं वो स्मॉलर साइज होते हैं जो अनायंस होते हैं वो बिगर साइज होते हैं ठीक है इन अ क्रिस्टल लैटिस इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस दिस इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस ठीक है Okay, they are formed by the three-dimensional arrangement of cations and anions bound by strong electrostatic forces of attraction. तो ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया दिस इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड ठीक है ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर ठीक है बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं ये ठीक है दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ठीक है ये टूट जाते हैं जल्दी से ठीक है ब्रिटल है सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में जैसे मैंने आपको बोला अभी सोडियम क्लोराइड है भाई साहब इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कर रहे हो ये लैंप भाई साहब जलेगा ही नहीं ठीक है ये लैंप क्यों नहीं जलेगा क्योंकि आयंस आर नॉट फ्री टू मूव दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई ये छूटेंगे तभी तो आयंस बनाएंगे और तभी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा जो या तो अचीव होता है आपके फ्यूज्ड स्टेट में जब आप इसको बहुत ज्यादा हीट करते हो जब ये मेल्ट होना चालू होता है और अचीव होगा जब आप इसी को किसी डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड में डाल दे जो है वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है तो इसको सॉल्वेट ऑफ आयंस सॉल्वेशन ऑफ आयंस हो जाएगा ठीक है सो सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट तो सोडियम क्लोराइड in spite of being made up of ions it will behave as an insulator however in molten state or when dissolved in water the ions become free to move and conduct electricity sodium chloride
zinc sulfide, cesium chloride, calcium fluoride, all of these are basically ionic solids because there is a ionic or covalent bond between a donor and an acceptor. क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो इसके बाद अपन कोवैलेंट सॉलिड करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत